Hello students, today we are going to see class 5 EVS unit 3 types of rocks. Okay, we are seeing rocks and minerals, out of which today we are going to cover one part of types of rocks. Okay, अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्लाइड है. There are 3 types of rocks which are mentioned in this slide. What are they? They are called igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, what are 3 types of rocks? They are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, now let us see igneous rock first. In today's video we are mostly covering igneous rock. Okay, now can you see the picture? What is shown in that picture? There is a volcanic eruptions, है ना. ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? There is a volcanic eruptions, लावा बाहर निकल रहा है. किसमें से? वोल्केनो में से. ओके, तो ये लावा देखो, आप जब डायग्राम में जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको नीचे दिख रहा है एक रेड कलर का स्पॉट है ज़मीन के अंदर. ओके, दैट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ विच वी कॉल एज मैंटल. मैंटल का पार्ट है जिसमें क्या स्टोर होता है? हॉट लिक्विड rock material. Okay, there is a hot liquid rock material present in our mantle. Okay, that hot liquid rock material is called as lava. That hot liquid rock material, when it come on the surface of the earth, we call it as lava, but when it is present inside the earth, it is called as it is called as magma. Okay, so igneous rock is what? Igneous rock is the rock which is formed by liquid hot rock material which is present inside the earth. Okay, the rock which is formed by liquid rock material present inside the earth is called igneous rock. Okay, this is called as igneous rock. The hot liquid material which is present inside the mantle of the earth is called magma. जो mantle में present होते हैं rock material, तब उसे क्या बोला जाता है? It is called as magma. लेकिन उसे जब अर्थ के प्लेट्स के बीच में कोई गैप मिलती है और वो गैप के थ्रू जब ये फोर्सफुली अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है थ्रू वोल्केनो, आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड एज लावा. When it comes on the surface of the earth, the magma becomes what? It becomes lava. Okay, when this hot liquid rock comes on the surface of the earth, it is called as lava. अभी देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हमने देखी है. पहली तो igneous rock. Igneous rock means what? जो liquid rock material से बनता है, that rock is called as igneous rock. Second, igneous rock is formed because of 2 type of rock materials. पहला है जो मैग्मा से बनता है और सेकंड है जो किससे बनता है? सेकंड बनता है लावा से. ओके, मैग्मा और लावा के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया? डायग्राम में देखो आप, जो उसके अंदर था, मैंटल के अंदर जो रेड वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा. और मैग्मा जब बाहर आता है किसमें से? वोल्केनो में से, तो उसके बाद में हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लावा. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये एक वोल्केनिक इरप्शन का फोटो है ना. इसके बाद में वहाँ से जो लिक्विड रॉक मटेरियल फोर्सफुली फ्लो होता है ना, बाहर आता है, उसे हम बोलते हैं क्या? इट इज़ कॉल्ड एज लावा, है ना. ये लावा दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये लावा, इससे बनता है आपका इग्नियस रॉक. ओके, इग्नियस रॉक. ये मटेरियल जब कूल हो जाएगा, धीरे धीरे ये मटेरियल जब कूल हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा आपका इग्नियस रॉक. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सी नाउ igneous rock, we can divide igneous rock into 2 types. The first one is called as intrusive igneous rock and the second one is called as extrusive igneous rock. Okay, intrusive and extrusive, these are 2 types of igneous rocks. ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले की स्लाइड देखी थी, आपको याद है? उसमें मैंने आपको लावा और मैग्मा के बारे में डिस्क्राइब किया. तो देखो, जो इंट्रूसिव रॉक्स है वो रॉक्स बनते हैं कहाँ पे? दे फॉर्म इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ.
the rock which is formed, the igneous rock which is formed inside the surface of the earth, it is called as intrusive rock. Okay, intrusive rock देखो कैसे बनता है, inside the surface of the earth, मतलब it is made up of magma. magma जब surface के ऊपर आता ही नहीं है, earth के surface के अंदर ही जब वो slowly cool होता है तो finally उसका conversion होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में. आपको डायग्राम में जो पिक्चर दिख रहा है ना, वो किसका है, उसमें देखो जो ग्रेनाइट की टाइल्स दिख रही हैं आपको 3, दिस टाइल्स दे आर मेड अप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ये सरफेस के ऊपर नहीं मिलता है, इसको ग्रेनाइट को अगर आपको निकलना है तो इसकी माइंस होती है, माइंस में से ग्रेनाइट निकाला जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ठीक है, इसके बाद में जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है लावा के फॉर्म में, अब अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगा तो आजू बाजू के सराउंडिंग के वजह से वो बहुत फास्ट कूल होता है, और फास्ट कूल होने के बाद में उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, उसका कन्वर्शन हो जाता है रॉक में. सच टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव रॉक. दिस रॉक मटेरियल इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव रॉक मटेरियल. ओके, एग्जाम्पल है इसका बेसॉल्ट. आपको जो सिंगल रॉक यहाँ पे दिख रहा है ना बड़ा सा, दैट इज बेसॉल्ट. बेसॉल्ट है ये. बेसॉल्ट इज इंट्रूसिव रॉक, ग्रेनाइट इज बेसॉल्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक, ग्रेनाइट इज इंट्रूसिव रॉक. ओके, हम पहले डायग्राम पे जाते हैं, फर्स्ट पेज पे. यहाँ पे देखो आप, जो वोल्केनो में से इरप्शन होके बाहर जब वो लावा फैलेगा तो सरफेस के ऊपर कौन बनेगा, सरफेस के ऊपर बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. और सरफेस के अंदर कौन बनेगा, सरफेस के अंदर देखो वो रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है, ये जो है लावा वो बहुत धीरे धीरे, मैग्मा सॉरी, हाँ सरफेस के अंदर उसे हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा धीरे धीरे कूल होगा और फिर उसका कन्वर्शन किस में होगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में. ठीक है, लावा से बनता है बेसॉल्ट एक्सट्रूसिव रॉक, मैग्मा से बनता है ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखो ग्रेनाइट, अभी ग्रेनाइट और बेसॉल्ट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे. सी, दिस इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट इज नेम इज मेड अप ऑफ द वर्ड ग्रैनम. ग्रैनम नेम से ये वर्ड बनता है. ग्रैनम का मीनिंग है ग्रेन. अगर आप ग्रेनाइट देखोगे तो आपको उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं. हमें देखो आप ये ग्रेनाइट के पिक्चर में आपको क्या दिखेगा, ये पूरा प्लेन नहीं है रॉक, इसमें कई सारे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं अपने को ग्रेन के शेप के. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ग्रेनाइट रॉक्स. ओके, पॉइंट्स देखो इससे रिलेटेड. पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेनाइट इज इट इज intrusive rock. Granite is an intrusive rock. It means it is made up of magma. Okay. Second, granum means grain. ग्रैनम का मीनिंग क्या होता है, ग्रेन होता है. दैट इज वाई द नेम इज ग्रेनाइट. इट इज़ वेरी हार्ड रॉक. ग्रेनाइट बहुत हार्ड रॉक है और आपको अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेराइटी में, देखो अपने डायग्राम में 4 वेराइटी के रॉक्स जो है ग्रेनाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ पे किया गया है, सीढ़ियों पे जो डेकोरेटिव रॉक्स लगाए जाते हैं, देखो आपको टाइल्स वहाँ पे जो लगाई है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रेनाइट. ओके, सो granite is very hard rock and it comes in various colors. Okay, so this is about granite. Now where granite is used, it is used for making statue, kitchen tops, flooring of houses etc. ग्रेनाइट के स्टैचूज बनते, जो बड़े बड़े हमें स्टैचूज देखने को मिलते हैं ना, अनेक मतलब बहुत जो फेमस हीरोज़ है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उनके जो स्टैचूज़ बनते हैं, वो स्टैचूज़ बनने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है. उसके बाद में किचन टॉप्स, आपके घर में किचन में जो है जिसमें गैस रखा हुआ होता है, वो एरिया कैसे बना हुआ होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फ्लोरिंग ऑफ हाउसेस. हाउसेस की जो टाइल्स है, देखो यहाँ पे डायग्राम में जो स्टेयर केस है वहाँ के नीचे और स्टेयर्स के ऊपर जो रॉक इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ग्रेनाइट. ओके, इट इज़ वेरी यूजफुल कंस्ट्रक्शन में. ग्रेनाइट ये रॉक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इग्नियस रॉक, दैट इज़ बेसॉल्ट. ये बेसॉल्ट देखो, अभी बेसॉल्ट कहाँ पे फॉर्म होता है, बेसॉल्ट फॉर्म होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर. बेसॉल्ट इज़ एन एक्सट्रूसिव रॉक. ये कैसा रॉक है,
This is an extrusive rock. It is very hard, dark in color and it has sharp edges. अभी यहाँ पे फर्स्ट रॉक देखो आप, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कोई भी आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये बहुत फास्ट कूल होता है। जो बेसॉल्ट रॉक है ये कूल कैसे होता है, बहुत फास्ट होता है। इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और ये क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, दिस क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड, ओके, एंड दे हैव शार्प एजेस। जो हमारे अर्थ का सरफेस है, मैक्सिमम अर्थ का जो सरफेस है ऊपर का, जिस हार्ड रॉक से बना है, दैट इज बेसॉल्ट। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट बिलो ओशियंस, ओशियंस का जो बेस है, ओशियंस का बॉटम जिस रॉक से बना है, दैट इज बेसॉल्ट। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट। वेयर आर बेसॉल्ट्स यूज्ड, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इन कॉन्क्रीट मिक्सचर। कॉन्क्रीट बनता है ना, किससे बनता है, कॉन्क्रीट बनता है, आपकी गिट्टी बनती है, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाला सीमेंट बनता है। ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है, दैट ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ basalt. Okay, so in this way granite and basalt, these two rocks are very important for us. Okay, so this is about igneous rocks. हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। देखो igneous rock में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो rocks मतलब क्या, rocks are substances which we get from earth. Second thing, important thing ध्यान में रखो, rocks are made up of minerals. Rocks are made up of minerals. There are three types of rocks: igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. Igneous rock, the rocks which is formed by liquid rock material present inside the earth is called igneous rock. The hot liquid material present inside the mantle of the earth is called magma. When this hot liquid rock comes on the surface of earth, it is called lava. डायग्राम में आपको मैग्मा और लावा दोनों दिखाई दिए हैं, और सरफेस के अंदर जो रॉक बनता है मैग्मा से, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो सरफेस के ऊपर बनता है अर्थ के, वोल्केनो के थ्रू लावा बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक का फोटो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, लावा से बना हुआ इग्नियस रॉक। उसके बाद में हमने देखे इग्नियस रॉक के दो टाइप्स। व्हेन द मैग्मा कूल्स स्लोली इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट फॉर्म्स intrusive igneous rock, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। When the magma flows over the surface of the earth in the form of lava and cool fast, it forms extrusive rock, for example basalt. Okay, इसके बाद में देखो दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के बीच में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो, इंट्रूसिव सरफेस के अंदर बनता है, एक्सट्रूसिव सरफेस के ऊपर बनता है। इंट्रूसिव का कूलिंग का रेट स्लो होता है, एक्सट्रूसिव बहुत फास्ट कूल होते हैं। इंट्रूसिव के क्रिस्टल्स की साइज़ बड़ी होती है, एक्सट्रूसिव छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। ठीक है, इसके बाद में ग्रेनाइट के बारे में हमने देखा था। ग्रेनाइट का पिक्चर देख लो, आपके सराउंडिंग में ये रॉक आपको मिलेगा, आपके घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ एन इंट्रूसिव रॉक, ग्रैनम मीन्स ग्रेन, it is very hard rock and it comes in various colors. Uses of granite, it is used for making statue, kitchen tops and flooring of houses. Okay, after that there is basalt. It is an extrusive rock. It is very hard, dark, had sharp edges. Most of the earth's crust below ocean is made up of basalt. Where basalt is used, it is used in construction. It is used for making concrete mixtures. Okay, that's all. यहाँ पे igneous rocks टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद में हम sedimentary rocks नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।